Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women. Today I'll tell you about this college in which I have studied. Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women SRCASW comes under University of Delhi. ये कॉलेज 1989 में स्टैब्लिश हुआ था to change lives and impart technical knowledge and build the future. Almost 3 decades, the institute has been striving to imbibe ethical principles to engender young women's self-reliance. Okay, this college offers courses that provides the stage where students gain important and practical knowledge to overcome the challenges worldwide. ये कॉलेज accredited है NAAC with A grade and is a DBT star college. NIRF college rank of this college is 31st. ये कॉलेज काफ़ी सारे यूनिक कोर्सेज ऑफर करता है इन वेरियस डिसिप्लिन्स. करंटली ये कॉलेज CBCS दैट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर चलता है. CBCS में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है टू द स्टूडेंट्स to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective or minor or skill-based courses. Students can move across institutions within India to begin with and across countries also. Uniform grading system होता है जो enable करता है potential employers in assessing the performance of the candidates. ठीक है. And in order to bring uniformity in evaluation and computation of the cumulative grade point average CGPA system use होता है which is based on the performance of the student in the examination. Around 1,000 students take admission from all over India in this college. The quality of life in campus makes studying a truly educative experience. Session July से begin होता है and currently 4 courses are offered by this college and they are Art and Social Science, Science and Management. तीनों स्ट्रीम के कोर्सेज हैं. आर्ट एंड सोशल साइंस में BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी है. साइंस में BSc ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, ऑनर्स इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. इन बायोमेडिकल साइंस, इन कंप्यूटर साइंस, इन फूड टेक्नोलॉजी, इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इन माइक्रोबायोलॉजी. मैनेजमेंट में BBA है इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड BMS दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है. सबके लिए अपना एक अलग क्राइटेरिया है, अपना एक अलग एलिजिबिलिटी है. सो यू कैन गो थ्रू दिस टेबल एंड सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. नेक्स्ट इज फी स्ट्रक्चर. द फॉलोइंग टेबल जो है वो फी स्ट्रक्चर डिफरेंट कोर्सेज की रिप्रेजेंट करता है. ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज की फीस है ₹15,620 बट कंप्यूटर साइंस की है 30,620 एंड बायोमेडिकल की है 25,620. Whereas BBA FIA that is Bachelor of Business Administration and Financial Investment Analysis की है 26,620. SC और ST PWD के लिए डिफरेंट एनुअल फी स्ट्रक्चर. ये फी पूरे 1 ईयर की है, ये पूरे 3 साल की नहीं है, सिर्फ ओनली 1 ईयर की है. ओके. हॉस्टल फैसिलिटी. The college has well-maintained girls' hostel with a capacity of 110 residents on sharing basis. हॉस्टल सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है जो NCR में नहीं होते हैं, और जो NCR के लिए उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं. हॉस्टल सिर्फ ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्रोवाइड होते हैं. इफ़ देयर आर सीट्स देन ओनली सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई एंड गेट हॉस्टल. अदरवाइज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ईयर यू हैव टू स्टे इन PG नियर बाय. PG वहाँ पर मयूर विहार फेज़ 3 में, नोएडा में एंड कोंडली में यही मिलते हैं. एंड बाकी आसपास अपार्टमेंट्स हैं, कहीं पर मिल जाते हैं किसी किसी जगह पे PG, वरना यू हैव टू टेक योर ओन फ्लैट एंड लिव देयर. ठीक है. हॉस्टल की एक वार्डन एंड मेट्रन होती है जो वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करती है. बिसाइड गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑफ 4 क्वार्टर्स फॉर एकेडमिक स्टाफ एंड 11 क्वार्टर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है. कॉलेज में ऑन कैंपस प्रिंसिपल बंगलो भी है. हॉस्टल की मेडिकल फैसिलिटीज़, रूम्स, मेस सब बहुत गुड है, अच्छे से प्रोवाइड की जाती है. A lady doctor is available for consultation in the hostel twice a week and is also available on call. All cases of illness must be immediately reported to the warden or matron. Hostel has a first aid room with all basic medicines, BP machine, weighing machine, nebulizer. All cases of serious illness
shall be referred to the nearest hospital, और द लोकल गार्डियन की ड्यूटी होती है कि वो अपने बच्चे को ले जाएं विद इन द 12 आवर्स ऑफ इंटीमेशन। सब रूम्स में बेड, वन बिल्ट इन वार्डरोब है, अलमीरा है, वन स्टडी टेबल है, अ चेयर है और एक बुक शेल्फ है। बाकी सारे मैट्रेसेस, पिलो कवर, क्विल्ट, ब्लैंकेट, बेड लिनन, टॉवल, कॉफ़ी मग, ग्लास, स्पून, थर्मोमीटर, लॉक, की एक्सेट्रा, ये सब स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को अपना आप लेके आना होता है। मेस इज़ रन बाय अ केटरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। न्यूट्रिशियस एंड होलसम मील होता है, 4 टाइम्स अ मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें ये सब अवेलेबल होता है। The hostel committee, along with student representative of mess committee, will oversee the quality and nutritional content of the food served in the mess. और जो फूड का मेन्यू होता है वो भी स्टूडेंट की कंसिडरेशन से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट इज फ्लोर वाइज एमिनिटीज़। हर फ्लोर पे लॉन्ड्री रूम है, पैंट्री है, वॉशरूम है, वाईफाई कनेक्शन है। सिक्योरिटी के लिए CCTVs आर इंस्टॉल्ड इन एंड अराउंड द हॉस्टल्स। Mosquito and insect control. Insect killer machines are installed on each floor to safeguard the students from mosquitoes and insects. Laundry room में fully automatic washing machine है. Ironing room with one iron, table and dary on each floor is there. Pantry में induction plate, microwave oven and fridge is there in the common room. 5 washroom है हर एक floor पे, which are well equipped with sanitary napkin incinerators. Visitors room. Resident may receive her relatives and friends in the visitor room. Visitors की fixed timing है, that is 4:30 to 7 p.m. on all working days and 10 a.m. to 7 p.m. on the Sundays and other gazetted holidays. Visitor को आने से पहले और जाने से पहले साइन करना पड़ता है full up pertinent column of the visitors book each time they are visiting. Common room. बच्चों के लिए कॉमन रूम है जिसमें टेलीविजन, कैरम बोर्ड, चेस एक्सेट्रा की फैसिलिटीज़ हैं। It is the venue for residents to carry out activities like recitals, debates and discussions. ठीक है। हॉस्टल रेजिडेंट्स जो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी ऑफ द कॉलेज ड्यूरिंग द टाइमिंग्स भी ले सकते हैं एज परमिटेड बाय द वार्डन। Societies and cells. The college give its students opportunity to excel in sports and co-curricular activities as well. There are various societies, clubs, cells and student initiatives in the college. Societies में आती है मुखौटा जो एक स्वीट प्ले सोसाइटी है, आहार्या डांस सोसाइटी, फिलायरा म्यूजिक सोसाइटी, अल्वायरा फाइन आर्ट सोसाइटी, शफल शॉट्स फोटोग्राफी क्लब, ग्लैम फायर फैशन सोसाइटी, इंकलिंग्स लिटरेरी सोसाइटी। फिर आते हैं क्लब्स, रोबोटिक्स क्लब एंड इको क्लब। सेल्स में प्लेसमेंट सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, वुमेन डेवलपमेंट सेल। स्टूडेंट इनिशिएटिव्स में NSS, इनैक्टस, उन्नत भारत अभियान, डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर होम मेकर्स। इन सब के लिए इनमें एंटर करने के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं, सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हमें क्लियर करना होता है, ऑडिशन राउंड्स होते हैं। इनको क्लियर करके हम इन सब सोसाइटीज़ में एंटर कर सकते हैं। काफ़ी सारे कल्चरल और टेक्निकल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं कॉलेज में फ्रॉम टाइम टू टाइम। कल्चरल इवेंट्स में कारवा, ओरिएंटेशन डे जो कि होता है बिफोर द कॉलेज स्टार्ट, फ्रेशर्स डे होता है, राजगुरु डे होता है, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, स्पिक मैके होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल डे होता है, हिंदी दिवस होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेयरवेल भी होता है। टेक्निकल इवेंट्स में होते हैं इलेक्ट्रोमीनिया जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कर अरेंज कराता है, टेक्नेक्सिस डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कराता है, टेक मिलान डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कराता है, वर्ल्ड फूड डे डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कराता है, प्लेक्सिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंस कराता है, ट्रैप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। टुगेदर दे ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। डिजायर द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी organizes this event. Idiara, Department of Management and Financial Studies, organizes this event. Next important question is कि हम ये कॉलेज क्यों चूज़ करें? नॉट बिकॉज कि आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस कॉलेज और कि मैं बोल रही हूँ ये कॉलेज अच्छा है इसलिए, बट इसके टीचर्स जो है, फैकल्टी जो है वो वेल क्वालिफाइड है एंड कॉम्पिटेंट है। An important aspect of teaching process is the ability to learn, unlearn and relearn. जो टीचिंग फिलॉसफी है इस कॉलेज की इज़ दैट द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड द टॉट हैज़ टू बी डिजॉल्व एज द टीचर एंड द टॉट आर पार्ट ऑफ वन प्रोसेस. College has efficient support staff responsible for the smooth functioning of various laboratories and administration work in the college.
रेगुलर कोर्सेज के अलावा कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स सब कुछ होता है. In collaboration with Cisco, runs a Cisco Networking Academy which prepares students for CCNA industry certification. ठीक है. College also has Indira Gandhi Open National A University Center for Postgraduate Diploma in Library Automation and Networking. College का aim है to change life, build future, impart technical expertise through high quality applied learning. ये college puts a strong foot forward to imbibe ethical values with aim of inculcating self-reliance attitude in women. एक क्वेश्चन आता है कि कॉलेज मैटर करता है नहीं करता फॉर आवर फ्यूचर. भले ही हमारे डिग्री पर कॉलेज का नेम मेंशन नहीं होता, पर कॉलेज तब भी मैटर करता है बिकॉज गुड कॉलेज गिव यू गुड प्लेसमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. मोर ओवर गुड कॉलेज में अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक लाइब्रेरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ होते हैं. Good college give you more explore which is very important. Well maintained laboratory होती है with latest equipment जो लो ग्रेड कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती. गुड एटमॉस्फेयर होता है. ग्रोथ लेवल इज फास्ट बिकॉज गुड कॉलेज प्रोवाइड ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टिंग योर करियर. मैंने कहीं पढ़ा था यू रिप्रेजेंट्स योर कॉलेज एंड योर कॉलेज रिप्रेजेंट्स यू. आपका CV विल बी द क्राइटेरिया टू गेट योर इंटरव्यू कॉल. और फर्स्ट थिंग जो कंपनी देखती है वो देखती है कि आप कौन से कॉलेज से हो. इसलिए कॉलेज काफ़ी मैटर करता है. इसके अपने डिसएडवांटेजेस भी है एडवांटेजेस के साथ साथ. इट मे सो हैपन एंड हैज़ हैपन विद मैनी स्टूडेंट कि उन्होंने 10+2 दैट इज़ 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर किया एंड देन ट्राई टू गेट इनटू रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. उन्होंने उस जिस यूनिवर्सिटी में जिस क्या कहते हैं कॉलेज में उन्हें जाना था, जिस इंस्टीट्यूशन में उन्हें जाना था, उस कॉलेज के जितने भी प्रेफरेंसेस थे वो सब फिल कर दिए, मल्टीपल स्ट्रीम्स फिल कर दी. बट उनका उस कॉलेज में सिलेक्शन तो हो गया बट उनको उनकी मनचाही ब्रांच नहीं मिली बिकॉज उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई. कट ऑफ इज़ द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच you are selected for a particular college. Student is admitted into a well-reputed college. Student quality is exceptional. Competition is high. There are two possibilities. अगर आप इन कॉलेज में चले भी जाते हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ होते हैं. भले आपको सब चीज़ अच्छी मिलती है, एटमॉस्फेयर एंड कंपटीशन अच्छा होता है, बट दो चीज़ें होती हैं. अगर स्टूडेंट ने डेवलप इंटरेस्ट इनटू इस ब्रांच देन उसको मज़ा आएगा. बट अगर उसने डेवलप नहीं करा इंटरेस्ट अपनी ब्रांच में, उसको फिर प्रेशर फील होगा और स्टार्ट्स हेटिंग द डिसीजन ऑफ गोइंग बिहाइंड द टायर. However, being a part of such institution, she get a placement and depending upon his or her attitude towards the organization, she can excel despite of having regrets for the choice of branch during graduation. So all the best for all the best to everyone for their future. College also matters, so decide very sharply before choosing your college. And thank you so much. Do like and share this video.